بحرے گناہ سے نکل، تو اپنے آپ کو بدل۔ بحرے گناہ سے نکل، تو اپنے آپ کو بدل۔ اپنی صلیب اٹھا کے چل، اپنی صلیب اٹھا کے چل، اپنی صلیب اٹھا کے چل۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، پیارے بچوں، سینٹ روز آف لیما کہتی ہے کہ صلیب وہ واحد رستہ ہے جو ہمیں آسمان پر لے کر جاتا ہے، جو ہمیں خدا سے ملاتا ہے۔ اور کلیسیا ہمیں یہ دن اور یہ ایام عطا کرتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زندگیوں پر غور کریں اور خداوند یسوع مسیح کے سچے شاگرد بن جائیں۔ اور یسوع مسیح سچے شاگرد بننے کے لیے ہمیں کلیہ دیتا ہے، اصلاح کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ جو میرا شاگرد بننا چاہے اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ آج ہم جب کبھی بھی کسی سے بھی بات کریں، چاہے گھر میں بیٹھے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، ٹی وی آن کریں، یا موبائل پر واٹس ایپ یا کسی بھی قسم سے کسی سے بھی گفتگو کریں فون پر، ہم سب کا محور گفتگو ٹاپک ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ کیا؟ کرونا وائرس۔ ہر کوئی اسی کے بارے میں بات کرتا ہے، اور ان باتوں میں سب سے پہلے جو وجہ بنتی ہے، سب سے پہلے جو ہم تذکرہ کرتے ہیں، فلاں کنٹری میں، اس ملک میں اتنے زیادہ کیسز سامنے آ گئے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم ان کو یاد کرتے کہ جو اس بیماری کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے اس دنیا فانی سے کوچ کر دیتے، اور ہم نمبر کاؤنٹ کرتے ہیں، نمبر بتانا شروع کرتے ہیں، اتنے کیس بڑھ گئے ہیں اور اتنوں کی اموات ہو گئی ہے، اتنے لوگ موت کا لقمہ کھا چکے ہیں۔ کہا یہ جائے کہ آج دنیا بھر میں موت کا سایہ منڈلا رہا ہے، یا موت راج کر رہی ہے، اور ہر کوئی اس خوف اور ڈر سے بھرا ہے۔ کچھ اس کا اعتراف کر لیتے ہیں، کچھ اس کا اعتراف نہیں کرتے، بلکہ اپنے دل میں اس ڈر اور خوف کو رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ انسان موت اور ڈر کے خوف کی وجہ سے ڈرا ہے، پریشان ہوا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت کا بھی لب و لباب کچھ اسی طرح سے ہے۔ اس کی ہسٹری پر دیکھنا جائے تو یہودی بابل کی اسیری میں تھے اور ڈرے اور خوف سے بھرے ہوئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے ان کے گھر چھین لیے گئے، ان کی زمینوں سے انہیں جدا کر دیا گیا، ان سے ملک لے لیا گیا، ان کے بادشاہ قتل کر دیے گئے، اور تو اور ان کی دعا کرنے کی جگہ ہیکل پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ اس لیے وہ اس بات اور اس ڈر اور خوف سے بھر گئے تھے کہ ہماری زندگیاں ایسے ہی ہیں کہ جیسے ہم مرنے والے ہیں یا قبروں میں رکھے گئے ہیں۔ اس لیے خدا اپنے بندے حزقیال کو بھیجتا ہے، اسے زندگی کا کلمہ دیتا ہے، اور جب اسے کلمہ دیتا ہے صاف صاف باور کراتا ہے کہ میں تمہاری قبریں کھولوں گا، تمہیں باہر نکالوں گا، اور پھر تم میں اپنی روح ڈالوں گا۔ اور ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ خدا کی روح کا آنے کا مطلب زندگی پانا ہے، جیتی جان ہونا ہے، اور خدا انہیں زندگی کی امید دیتا ہے، زندگی دینے کے لیے ان کے حوصلوں کو بلند کرتا ہے، کیونکہ وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور جب ہم غلام کی بات کرتے ہیں تو ان وقتوں میں غلام کی زندگی بالکل جانوروں جیسی تھی۔ مالکان غلام کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے، مارتے بھی تھے، یہاں تک کہ قتل بھی کر دیتے تھے، کھانا پینا بھی کم ہی دیتے تھے۔ اس لیے وہ غلامی کی زندگی سے تنگ آ کر خدا کے حضور کرلاتے ہیں، اور خدا انہیں زندگی کا پیغام دیتا ہے۔ اور جب انہیں زندگی کا پیغام دیتا ہے تو یقینی طور پر آج اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمارا بھی حال بالکل انہی کی طرح ہے،
बिल्कुल उन्हीं की तरह हम भी मौत से डरे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि आज की तीनों तलावतें हमारे लिए खुदा का पैगाम लेकर आती हैं, हमारी उम्मीद को मजबूत करना चाहती हैं। और जब उम्मीद मजबूत है तो यकीनी तौर पर हमारा ईमान भी पुख्ता है, हमारा ईमान भी पुख्ता है। और जब हम ईमान के साथ खुदा के अलतार की तरफ आते हैं तो खुदा हमें ज़िंदगी देना चाहता है। और ज़िंदगी किनको देता है? आज की दूसरी तलावत बड़े खूबसूरत तरीके से हमें बताना और बावर कराना चाहती है। ज़िंदगी उनके लिए है कि जो खुदा के रूह से भरे हैं। दूसरी तलावत में बशरी और रूहानी का तज़किरा है। जो खुदा से भरे हैं वो खुदा की रूह से भरे हैं, और जो खुदा की रूह से भरे हैं वो यकीनी तौर पर दूसरों को अपनी माने समझते हैं। जैसे आज जब हम गौर करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे पड़ोस में, हमारे बहुत से दोस्त, बहन, भाई, हर कोई इस वक्त इस मुसीबत में है, और कई लोगों के पास तो खाना खाने के लिए नहीं है। तो अगर हम खुदा के रूह से भरे हैं, खुदा से मुंसलिक हैं, तो फिर हम उनके दर्द और उनकी तकलीफ को भी जान सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनका सहारा बन सकते हैं। जिस तरह खुदा हम सबका सहारा बनता है, खुदा हम सबकी मदद करता है। आज की अंजील मुकद्दस जो मौत और जी उठने का पैगाम देती है, मौत और जी उठने का पैगाम देती है। यीशु को पैगाम भिजवाया जाता है, तेरा दोस्त लाजर बीमार है, तेरा दोस्त लाजर बीमार है। और यीशु को क्या करना चाहिए था? जब दोस्त कहता है, जब दोस्त तस्वर किया जाता है तो उसे क्या करना चाहिए था? यीशु को फौरन सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहले उसके पास जाना चाहिए था, उसकी इजाजत के लिए। पहली बार उसे पैगाम शायद भेजा गया, पहली बार कि तेरा दोस्त बीमार है, तो उसे उसकी इयादत करने के लिए जाना चाहिए था। लेकिन यीशु नहीं जाता। अंजील मुकद्दस की तफसीर करने वाले बहुत सी बातें करते हैं, और कुछ ये कहते हैं कि यीशु इसलिए नहीं गया कि वो खुदा के जलाल को जाहिर करना चाहता, खुदा के जलाल को। क्यों? क्योंकि जब वो वहां जाता है तो क्या कहती है लाजर की बहन कि कितने दिन हो गए उससे कब्र में पड़े हुए? 4 दिन, वाज़ेह तौर पर 4 दिन। क्योंकि यहूदी इस बात पर ईमान और यकीन रखते थे कि जब भी कोई इंसान मरता है उसकी रूह 3 दिन तक उसके इर्द गिर्द मंडलाती रहती है, कब्र पर रहती है और उसके साथ साथ रहती 3 दिन तक। और खुदावंद यीशु मसीह पहली बार नहीं था कि लाजर को मुर्दों में से जिंदा करता है, पहली बार नहीं, उससे पहले भी उसने कईयों को जिंदा किया, जैसे कि बेवा के बेटे को, यायर की बेटी को, एक नौजवान को भी। और ये वो थे कि जिनको मरे हुए कुछ घंटे हुए थे, और कई लोग ये ख्याल करते थे क्योंकि रूह इर्द गिर्द मंडला रही थी इसलिए उन्हें उसे जिंदा किया। और खुदावंद यीशु मसीह जब लाजर को 4 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा करता है तो ये बात जाहिर होती है, बहुत से लोगों को ये बावर कराना चाहता है। एक तो खुदा का जलाल जाहिर होता है, दूसरा ये कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा और जिंदा करने की कुदरत भी रखता है, जिंदगी देना चाहता है। आज जब हम ये सारे हालात से गुजर रहे हैं, बहुत दुखी हैं, जितने लोगों की हम अमवात का जिक्र सुनते हैं यकीनी तौर पर हमारे दिल से आह निकलती है, हम दुख महसूस करते हैं। इस दुखी हालात में भी खुदावंद यीशु मसीह हमारी उम्मीद को जिंदा करना चाहता है, क्योंकि वो कुदरत रखता है, वो कुदरत रखता है और जिंदा करने की ताकत रखता है, शिफा देने की ताकत रखता है। इसलिए हम सब हर वक्त हर लम्हा इसी फिक्र और तरद्दुद में रहते हैं कि किसी ना किसी तरह से खुदा से इल्तिजा करें, खुदा से दुआ करें कि खुदा इस वबा को जल्द से जल्द इस दुनिया से दूर करे। इस दुनिया से दूर करने के लिए हम दुआएं करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की बरकत और फजल को हासिल कर सकें। मुक़द्दस अगस्तिन कहते हैं जिस तरह दुआ करो इस तरह दुआ करो कि सब कुछ खुदा के हाथ में है, खुदा करने वाला है, इस तरह खुदा के हजूर दुआ करें। फिर दूसरी बात कहता है कि इस तरह काम करो कि सब कुछ तुम खुद ही करोगे। क्या मतलब?
मतलब ये कि हम हर वक्त और हर लम्हा खुदा से इल्तिजा कर रहे हैं कि खुदा अपना रहम नाजिल करे, खुदा अपनी शिफा नाजिल करे, और ये हमारा पुख्ता ईमान और यकीन है। अब काम के लिए क्या करना है? जैसे तमाम दुनिया में हर मुल्क की गवर्नमेंट ये लोगों को बावर करा रही है, इल्तिजा कर रही है, कानून बना रही है कि कोई भी घर से ना निकले। यहां भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, कलीसिया के रहनुमाओं ने, बिशप साहबान ने, काहिनों ने हर किसी खानदान से ये बावर कराना चाहते हैं, इल्तमास कर रहे हैं घरों से बाहर ना निकलें, दुआ करें, दुआ करें, घर में रहकर दुआ करें। जिस तरह से यहूदी कुरला रहे थे, रो रहे थे कि हैकल में उनकी हैकल छीन ली गई, वो वहां जाकर दुआ नहीं कर सकते थे, इस तरह बहुत से लोग आज ये भी तसव्वुर कर रहे हैं कि हम गिरजाघर में जाकर दुआ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें याद रखना है, वेटिकन डोम का डॉक्यूमेंट लुमेन जेंसियम वो कहती है कि हर खानदान एक छोटी कलीसिया है, हर खानदान एक छोटी कलीसिया है। जब हम गिरजाघर में जाते हैं तो गिरजाघर में हम बड़ी कलीसिया के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तिश करते हैं और पाक कुर्बानी में शरीक होते हैं। लेकिन अब वक्त है कि हम छोटी कलीसिया में अपने अपने खानदान में रहते हुए बड़ी कलीसिया के लिए दुआ कर सकें, खुदा से इल्तिजा कर सकें। ये हमें आज सीखना है, हमें जानना है, और किस हद तक हमने अपने खानदानी जिंदगी यानी अपनी छोटी कलीसिया में रहते हुए खुदा के साथ मुंसलिक होना है। अब खानदान, मैं ये ख्याल करता हूँ गो के ये बहुत जानलेवा वबा है, लेकिन एक मुस्बत पहलू जो मैं फील करता हूँ कि ये चंद अयाम, यकीनी तौर पर ये वबा चंद अयाम के लिए है कि हम सब पूरी कलीसिया छोटी छोटी कलीसियों में बंटकर अपने अपने खानदानों में दुआ में मशगूल हैं, दुआ करते हैं, और खुदा हमारी दुआओं को यकीनी तौर पर सुनेगा। जो ये चंद अयाम हैं ये हमारी खानदानी जिंदगी को मजबूत करते हैं, खानदानी जिंदगी को मजबूत करते हैं। बाप बच्चों के साथ बैठने का मौका मिल गया, बहन भाइयों को इकट्ठे खाने का मौका मिल गया, और जब हम इकट्ठे रह रहे हैं तो इकट्ठे दुआ करना भी हम पर वाजिब है, दुआ करना भी हमारे लिए मजबूती का अमल है। सेंट जॉन पॉल दोइम वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि खानदान उस वक्त मजबूत होता है, उस वक्त कायम होता है जब दुआ करता है, और जब दुआ करता है खानदान सिर्फ मजबूत नहीं होता बल्कि पूरा माशरा, पूरी कौम मजबूत होती है, और जब कौम और माशरा मजबूत है तो पूरी दुनिया मजबूत है, पूरी दुनिया मजबूत है। इसलिए आज जब हम इकट्ठे दुआ करेंगे, यकीनी तौर पर हमारे खानदानों के लिए नहीं बल्कि हम इनफरादी तौर पर एक खानदान होकर दुआ कर रहे हैं, और ये दुआ हमारे लिए, पूरे माशरे के लिए, ना सिर्फ हमारे मुल्क के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया के लिए ये जरिया दुआ का बनता है। आज हमें खुदा बावर कराना चाहता है, बुलाता है, ताकि हम अपनी अपनी जगह में रहते हुए खुदा से दुआ और बरकत पाते हुए खुदा की तरफ बढ़ सके। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का इकलौता बेटा इस दुनिया में आया ही इसलिए था, और वो तो खुद कहता है, बावर कराना चाहता है, बार बार कहता है कि तुम जिंदगी पाओ बल्कि कसरत से जिंदगी पाओ। ऐसा नहीं है कि खुदा अपने बेटे को इस दुनिया पर भेजे जिंदगी देने के लिए और ये कोरोना वायरस उस जिंदगी को खत्म कर दे, हरगिज नहीं। खुदा के बेटे की कुर्बानी रायगा नहीं जा सकती है, बल्कि वो हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का सबब बनती है, ताकि हम उस जिंदगी में शरीक हों, उस जिंदगी को हासिल करें और उसके बढ़ने की और खुदा के जलाल को जाहिर करने का जरिया बन सकें। और जब इन दिनों में हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए सहारा बनते हैं, तो यकीनी तौर पर उसी तरह जिस तरह खुदा सलीब अपने बेटे को भेजता है और सलीब पर वफादारी के साथ अपने बाप की मर्जी को पूरा करता है, उस मोहब्बत के लिए जो बाप हमसे रखता है, बेटा उस मोहब्बत के लिए अपनी जान कुर्बान करता है। आज हम सब भी उस मोहब्बत को अपने भाइयों और बहनों में देख सकें, किस को हमारी मदद की ज़रूरत है, ताकि हम
اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کا سہارا بننے کے لیے، اس کے لیے خدا کی ایمان لانے کے لیے، روحانیت لانے کے لیے ذریعہ بن سکیں۔ محبتوں کا خلا بر سکوں مسیح کی طرح، محبتوں کا خلا بر سکوں مسیح کی طرح، اے کاش سب سے وفا، اے کاش سب سے وفا کر سکوں مسیح کی طرح۔